Anybody has got a doubt? Let me ask you a question. नहीं? चलिए, एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं आज. And moving on to the next page. Opening the next page. Animalia. आवाज आ रही है हमारी सबको? Am I audible to all of you? Yes, sir. Thank you. Animalia. Animalia को डिफाइन किया जाता है multicellular organisms with holozoic nutrition. Multicellular organisms with holozoic nutrition. Holozoic nutrition. हमने इनिशियल क्लासेस में बताया था ये जो न्यूट्रिशन है इसको मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक को बोला होलोजोइक, होलोजोइक, और दूसरे को बोल दिया होलोफाइटिक, होलोफाइटिक, PHYTIC. Holophytic can be considered as another name for autotrophic nutrition or autotrophic nutrition. और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का जो हम लोगों ने मोनेरा में पढ़ा था, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड किया. ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसको आप डायरेक्टली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कह सकते, बिकॉज होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स type of nutrition which involves ingestion. It's a type of nutrition which involves ingestion. इसमें ingestion involved होता है. ये organisms eat. Ingestion का क्या मतलब हुआ? Eating. अब इस eating को अगर हम होलो वर्ड के साथ एसोसिएट करें, होलो मीन्स कंप्लीट. ईटिंग एज अ होल. ईटिंग एज अ होल एंटिटी और ईटिंग एज होल, पूरा के पूरा यूं खा लिया. नाउ दिस होलसम, दिस थिंग हैज टू पार्ट्स. थिंग्स व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड and the things which cannot be digested, which would remain undigested. Remain undigested. The things which would remain undigested, जो डाइजेस्ट नहीं होंगी. ठीक है, इस तरह से. अच्छा ठीक. अब इसके क्या होता है कि जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उनमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है. Some amount of the food is remained as some amount of the food remains as such. It is not available to the body. अब अमीबा की बात करो, that is the amoeba. The amoeba finds some food material and begins to encircle it using its pseudopodia. There is some food material. ये food material पड़ा है. Soon after this, what we get to see is that this food material has been incorporated into the body of the amoeba, and the amoeba now develops a vacuole in which this food material is present. अब इसमें डाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया. ठीक है. This would be followed by digestion and absorption. Digestion and absorption. आप लोगों ने 10th में पढ़ा है. Next, what happens is within the amoeba, the same vacuole
as leftovers, something which it was not able to digest. And these leftovers are thrown out of the body. These would be now thrown out of the body when this vacuole fuses with the cell membrane. अभी vacuole cell membrane के साथ fuse कर गया और इस समय ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये सारा के सारा बाहर छोड़ दिया जाता है, राइट। इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेल ईटिंग या फेगोसाइटोसिस. This is known as phagocytosis. Right. Now, phagocytosis is a type of holozoic nutrition. इसे आप समझ सकते हो holozoic nutrition क्या होता है. Organisms eat the things in wholesome. Right. Organisms are not digesting the food in the first case and then absorbing. They eat it first. पहले इसने खा लिया, फिर इसका डाइजेशन हुआ, कुछ चीजें डाइजेस्ट हुई, कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई. जो चीजें डाइजेस्ट हो गई उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए और अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया. Undigested material has been there. So whenever undigested food material is remaining in the gut of the intestine of an animal, an organism, the nutrition is said to be holozoic nutrition. It is the animals and the animal-like protists. It is the animals and the animal-like protists which show holozoic nutrition. But the protists are unicellular, and we have hence used the word multicellular to differentiate between the unicellular eukaryotes and the multicellular eukaryotes. इनको differentiate करने के लिए हमने word क्या use कर लिया, multicellular. So basically ऐसे अगर आप देखें तो next page पे लिखते हैं this holozoic nutrition. Holozoic nutrition is a property of कौन show करता है? It would be exhibited by the animal-like protists. Animal-like protists. And the other group is the animals, or the members of the kingdom Animalia. And these are unicellular. The animals are multicellular. So what we have done here is we have differentiated the unicellular from multicellular. हमने क्या किया, हमने वर्ड यूज क्या कर दिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो बन गया कौन से ऑर्गेनिजम्स की तरफ इंडिकेट करता है, एनिमल्स की तरफ. These would be the animals. अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते, it would have been we would have been talking about the protists. तो हम प्रोटिस्ट की बात कर रहे थे, यूनिसेलुलर एंड होलोजोइक. और कौन से प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे थे. ठीक है. Hence the definition. Hence this definition. Multicellular organisms with holozoic nutrition. ये समझ में आया सबको? ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं. यस सर. ये रहा इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन. हमने मल्टीसेलुलर वर्ड क्यों यूज किया? We had to use the word multicellular. Now there is a problem. There is a problem because, as I just said, biology is a science of exceptions. So definitely, whenever you start something, some small problem arises. Now this animal world, or this complete kingdom Animalia, is basically divided into two groups, two major groups. The parazoans.
एंड यू मेटाजोन्स। इसमें एक और ग्रुप होता है, उसका डिस्कशन अपने को करने की जरूरत नहीं है। द टिपिकल multicellular zoa animals, organisms having parallel features as that of the animals. This parazoans is a group which includes the sponges or the porifers or the porifers. These organisms, the sponges and the porifers, are hence called connecting links. Connecting links between the protozoans or the animal-like protists, protozoans, and the animals. The animals. ऐसा क्यों? Because these the parazoans, अब ये इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है? ये ठीक है कि अभी जैसे हमने बोला कि ग्रुप बीच में ऐड हो गया, बीच में कैसे ऐड हुआ? आप एक ग्रुप बनाते हो प्रोटोजोआ, एक ग्रुप आपने बनाया प्रोटोजोआ, द यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, फिर आपने बनाया पैराजोआ और फिर बनाया यूमेटाजोआ, द टिपिकल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसका मतलब क्या है? ये बीच में, अगर ये बीच में है इसको हमने क्या लिख दिया? कनेक्टिंग लिंक है, ऑब्वियसली क्योंकि बीच में ये प्रोटोजोन्स को मेटाजोन से कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि कनेक्ट कर रहे हैं, या ये ग्रुप आपने बीच में क्यों बनाया? Why did we actually create this group? The parazoans are different organisms. The parazoans are cellular aggregates. They are cellular aggregates. Their body is not made up of tissues. The level of organization is cellular grade. आज हम एक पहला टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स की बनी हुई है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। द ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम्स किसके बने होते हैं? ऑर्गन्स के बने होते हैं। ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज के बने होते हैं। टिश्यूज किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जिनमें सेल्स तो हैं लेकिन टिश्यूज नहीं है। जहां से टिश्यू बनना शुरू हो गया वहां पे मल्टी सेलुलरिटी आ गई। These organisms have cellular grade of organization. They exist as cellular aggregates. किसी एक जगह पे आप बहुत सारे सेल्स इकट्ठे कर दे, such an animal would be a parazoan. इस तरह के एनिमल को आप क्या बोल दोगे? पैराजोआ। नेक्स्ट पेज। Basis of classification. Basis of classification. Animals की हमने definition कर ली. We have discussed about the definition of the kingdom, of the members of the kingdom Animalia. Now, basis of classification, and the first basis of classification, that is level of organization. Level of organization. Level of organization. This means what any living thing is made up of. इसका मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग थिंग जो है वो किस चीज की बनी हुई है? What any living thing is
made up of. That is the meaning of level of organization. ठीक है, अच्छा जी. सेलुलर ग्रेड मतलब सिर्फ सेल्स होना. टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड. देन टिश्यू plus some tissues have formed organs, organ grade. Then organ grade, all the tissues are organized into organs. Whenever organs are formed, most of the organs get arranged to form organ systems. These are the various grades of organization seen in the members of the kingdom Animalia. जिनको भी हम किंगडम इस किंगडम में रखते हैं, उसमें ये इन तरह के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. अच्छा जी. सेलुलर ग्रेड, पोरीफेरा, टिश्यू ग्रेड. देयर आर टू फाइला. पहले वर्ड यूज किया जाता था सीरियन ट्रेटा. पहले वर्ड क्या यूज किया जाता था? सीरियन ट्रेटा. नाउ दिस ग्रुप सीरियन ट्रेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू फाइला. दो फाइला बना दिए. टू फाइला हैव बीन क्रिएटेड. एक को बोलते हैं नाइटेरिया, CNIDARIA, नाइटेरिया. और दूसरे होते हैं टीनोफर्स, CTE, सी साइलेंट है, टीनोफोरा. टीनोफोरा और वर्ड एनाइडेरिया, एनाइडेरिया. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कुछ टिश्यूज हैं और कुछ टिश्यूज ऑर्गन्स बना चुके हैं, ये होते हैं प्लेटीहेल्मिंथ्स, द फ्लैटवर्म्स. आपने टेपवर्म का नाम सुना होगा. प्लेटीहेल्मिंथ्स. The members of this phylum are commonly known as the flatworms. These are the flatworms. Then organs, organs and organ systems. इसके आगे जितने सारे हैं, Escalmins, the roundworms. Escalmins are the roundworms. Roundworms. Roundworms से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक बीच में एनिलीडा आ गया, अर्थवर्म, आर्थ्रोपोड आ गया, कॉकरोच, ठीक है, मोलस्का, द स्नेल्स, एकाइंडोडर्मेटा, द स्टारफिश, the fishes, the amphibians, the reptiles, the birds, the mammals. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है. So these are 1, 2, 3, 4. These are the four groups, the four major groups as far as level of organization is concerned. And these are the various examples. Porifera, then tissue grade Cnidaria and Ctenophora. Tissue plus organ grade Platyhelminths. अब एग्जामिनर इंडिपेंडेंटली भी पूछ लेता है. टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन. अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या है? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन. अब नाइटेरिया,
टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थ, ये तीनों ग्रुप आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो अभी ऑर्गन्स नहीं बने। और ऑर्गन ग्रेड अगर बोलते हैं तो प्लेटिहेल्मिन्थ कभी कभी इसमें भी इंक्लूड हो जाता है। बट द बेस्ट way to describe the level of organization in platyhelminths is organ grade। एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक टेबल दे रखा है, अगर आप उस टेबल को देखेंगे तो उसमें प्लेटिहेल्मिन्थ्स और में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। ठीक है, कोई गलती नहीं है, इट्स द वे यू वांट टू डिस्क्राइब और थिंक, उसके हिसाब से। आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सेलुलर ग्रेड का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यूज नहीं बने हैं। टिश्यू ग्रेड का मतलब क्या हुआ, टिश्यू बना है, ऑर्गन्स नहीं बने हैं। बाद में ऑर्गन्स बन जाते हैं और उसके बाद ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स भी बन जाते हैं। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ता चला जाता है, द ऑर्गेनिज्म बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, now this word symmetry, SYM, symmetry, the various lengths or the various dimensions. If we put the organisms, sorry, if we put the structures of the organism together, किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप उन्हें इकट्ठे रखते हैं तो अलग अलग लेंथ्स के हिसाब से या अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से अरेंजमेंट क्या है, दैट इज नोन एज सिमेट्री। द अरेंजमेंट of organisms, now the structures of the organism, the arrangement of structures of the organisms with respect to W dot R dot T dot, इसका मतलब क्या होता है, with respect to or in relation to, with respect to various dimensions, length, breadth, height, various dimensions of the body, of the body. And the major symmetries, the types. एक तरह की सिमेट्री हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो मेजर सिमेट्रीज देखने को मिलती हैं वो दो तरह की होती हैं, उसके अलावा दो और होती हैं। पहले मेजर सिमेट्रीज की बात करते होते हैं, द मेजर फॉर्म्स, द रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। Various structures are arranged along different radii in repetitive forms. कुछ ऑर्गन्स अगर यहाँ है तो repetitive forms में ये structures यहाँ arranged होते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिज्म में एक इनर सर्कल बन जाता है और एक आउटर सर्कल बन जाता है। The organism appears circular or discoidal. ऑर्गेनिज्म नेट शेप कैसा हो गया, सर्कुलर या फिर डिस्कॉइडल। ये अगर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ए मार्क कर दें तो ये सारे स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं अलग अलग रेडियस पे, और ये जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं